session. While talking forward about the powder coating industry, all the technological information, all the technological sectors are now adapted by a lot of industries. I wanted to know that if powder coating industry or paint or liquid paint, any kind of industry that we are associated with, is any one of us is also working with AI applications, like using AI and technological applications in your plants or any part of development of your product. As ExxonMobil is leveraging AI with tools such as FlightPath Pro to optimize application processes, ensuring more efficient powder usage. I want to know if we are ready to adapt the AI processes or applications in our plants or in our application processes. This is something that is very new, which is also trends of the like the market research and demand. So is any one of us also looking for applications, AI usage in their processes? I hope I'm understandable to everyone, but what I mean is that AI automation and applications can be used in the plants for the affirmative and smart works in your plants. So that is one thing that we can definitely work on for making it a smart plant. Please fasten the process. Our next presentation is on driving innovation and sustainable growth for MSMEs, enhancing efficiency with tailored solution and new technologies. And the speaker is none other than Dr. Gaurav Chandra Srivastava, who has earned his PhD in chemical synthesis from the Indian Institute of Technology, focusing on controlled radical polymerization. He has amassed over 18 years of experience in paints and coatings, ink industry, and contributing his expertise in physical chemistry, surface chemistry, chemical reactions, and reaction mechanism. His role involves developing new formulations, raw materials, and synthesis development. Dr. Gaurav has a rich portfolio of patents and research papers and is an author of comprehensive technical articles aimed at enhancing knowledge and awareness. Give us a round of applause for Dr. Gaurav Srivastava. So usually this is not my learned industry, but whenever Gaurav sir speaks on the stage, I listen to him very carefully. And the main reason why I like his presentation so much is that he uses English and Hindi both for the better understanding of our audience. So I would request Gaurav sir to use English as the medium of communication here, right? Yeah, right. If everyone is comfortable in English, then I will be more comfortable in talking this. Hi, good afternoon, everyone. It's the time for the evening. And I think all of you are waiting for the tea, and this is the last presentation. You all might feel little sleepy after this heavy lunch, and it is now being digested a bit in the tummy. Then give me some time, some of your attention. We will move through a very good topic.
It will involve all the sectors like MNC, SME, MSME, the demands, the innovative ideas, the products, the portfolios, everything will be there. And this presentation, I will start with a brief introduction about the Allnex. Many of you know about the Allnex. You have used the products as per your application area, as per your manufacturing, but still, I feel that you must have some more insight on that. What Allnex is? So, yeah. So this is Allnex at a glance. Allnex is a company, it's a resin manufacturing company, which is a global leader in industrial coating resins, and it has enhanced its portfolio into a water-based industry as well. So earlier, we are known as the one of the best resin producers for industrial coating, automotive coatings. But now, with the recent developments, we have come across with the technologies that are used in the water-based industry as well. Of course, Allnex has a great legacy for powder coating resins, and you must know that earlier the products are coming under the brand name of Cytec, and now that is coming under now it's Allnex. Cytec converted into Allnex, and the brand name is still the same. It's Krillcoat. So Krillcoat is a very well-known brand in powder coating industry. This is our small introduction that we have a heritage of over 70 years in the resin industry, resin manufacturing, and अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि लास्ट 70 सालों का जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो ऑलनेक्स रेजिन्स ने देखा है. ऑलनेक्स रेजिन ने उसमें एक अच्छा पार्टिसिपेशन किया है और ऑलनेक्स रेजिन्स एक ऐसी कंपनी है जो इस तरीके के इनोवेशन को ड्राइव करती है. सो दिस इज आवर हिस्ट्री एंड हेरिटेज. ये इंडस्ट्री या ऑलनेक्स का आप जो फाउंडेशन कह सकते हैं 1948 में हुआ, एंड पैरेलल उसके कुछ सालों के बाद में एक कंपनी है न्यूप्लेक्स, उसका फाउंडेशन हुआ. विनोवा रेजिन से हम होस्ट से सोल्यूशिया, यूसीबी, साइटेक, एंड पैरेलली द अदर कंपनी हैज आल्सो इवॉल्व with the acquiring the technology from ExxonMobil, Huntsman and Bayer. And after some time, there is a feel that in 2011-12 that these both companies has merged and became the brand Allnex. So Allnex has continued till 2016-17, and we have the technology for all the resins all across. सारी तरीके की डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजी सबका सब ऑलनेक्स के पोर्टफोलियो के अंदर इस समय है. रेजिन टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई भी रेजिन या टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑलनेक्स रेजिन्स के पास नहीं है. डेवलपमेंट हर समय होता रहता है. ये ऑलनेक्स का ग्लोबल फुटप्रिंट है और हम प्राउडली कहते हैं कि द सन नेवर सेट्स एट ऑलनेक्स, कि ऑलनेक्स में सूरज कभी नहीं डूबता है. क्योंकि आप हमारे ग्लोबल अगर फुटप्रिंट को देखेंगे फ्रॉम यूएसए टू far towards the Japan, everywhere we have manufacturing sites, everywhere we have technical centers. So at one end, if there is office is closed, another office is opening. So one technical service center is closed, then another technical service center is opening. So इस तरीके से अगर हम देखें तो डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, इनोवेशन कभी भी रुकता नहीं है ऑलनेक्स के अंदर. ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं. अमेरिका में, अमेरिकाज के अंदर, नॉर्थ अमेरिका आप कहिए, यूएसए बोलिए, कनाडा बोलिए, ईएमईए के अंदर या एपीएसी के अंदर. सो हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली 8 प्लांट हैं अमेरिका में. ईएमईए रीजन के अंदर हमारे पास 10 प्लांट हैं और एपीएसी रीजन के अंदर हमारे पास 16 प्लांट्स हैं. सो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑलनेक्स की कि
आपको किसी भी प्लांट से कभी भी कैसे भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारी की टेक्नोलॉजीज हैं, ऑलनेक्स की टेक्नोलॉजीज एंड वैल्यू प्रोपोजिशंस। वी आर वेरी गुड इन, वी आर इनटू लिक्विड रेजिन्स एंड एडिटिव्स, वी आर इनटू रैड क्योर यानी यूवी सिस्टम, वी आर इनटू पाउडर कोटिंग रेजिन्स एंड वी आर ऑल्सो इनटू द क्रॉस लिंकर्स। सो with all this portfolio, we can say that Allnex is a clear market leader and it is having the broadest portfolio in the industry. सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, सबसे ब्रॉड पोर्टफोलियो है। और ये स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि हम मार्केट लीडर किस किस सेगमेंट में हैं। LRA में मार्केट जो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशंस है वो हम पहले से तीसरे नंबर के बीच में इन डिफरेंट रीजन्स में आते हैं। रेड क्योर में हम पहले नंबर पर होते हैं। पीसीआर में किसी रीजन में हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, किसी रीजन में हम सेकंड पोजीशन पे हैं, और एक्सएलआर में विद द इनोवेशन वी आर एट द फर्स्ट पोजीशन। ऑटोमोटिव ओईएम की बात करें, व्हीकल रिफिनिश की बात करें या हाई एंड मेटल एप्लीकेशंस की बात करें, ऑलनेक्स इज देयर विद द सस्टेनेबल इनोवेशन। हम हाई वैल्यू, हाई ग्रोथ और हाई परफॉर्मेंस, ये तीन हमारे पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम अपने इनोवेशन और डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं। Now coming back to the main topic, that is driving innovations and sustainable growth for MSME, enhancing efficiency with the tailored solution and new technologies. इस presentation जो ये भी main presentation start होने जा रहा है, इसके अंदर हम आपको innovation drive के बारे में बताएंगे, कुछ नए products के बारे में बताएंगे, मार्केट से जो नई डिमांड्स पिछले 1 सालों में आई है उसके बारे में बताएंगे, और उसके जो टेलर मेड सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ कमिंग टू दैट, पहले थोड़ा सा मार्केट समझ लेते हैं कि क्या मार्केट है, क्या मार्केट शेयर है। देखिए, ये है ग्लोबल पाउडर कोटिंग मार्केट। ग्लोबल पाउडर कोटिंग मार्केट में अगर हम बात करें तो हम इसको मोटा मोटा 6 सेगमेंट में बांट सकते हैं। पहला है एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन का, दूसरा है जनरल मेटल इंडस्ट्री का, तीसरा है एस यानी एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का, चौथा है वाइट गुड्स या जिसको हम बोलते हैं अप्लायंसेस का सेगमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट जो है वो है मेटल फर्नीचर्स का, और छठा है ऑटो व्हील्स का। ये मेजर सेगमेंट्स हैं जो पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री कवर करती है एज ऑफ नाउ। इसके अंदर अभी 2-3% शेयर ऐसा है, जैसा अभी डिस्कशन में आया कि एमडीएफ हो गया, प्लास्टिक कोटिंग हो गई, या इस तरीके का वुड कोटिंग से रिलेटेड कोई सेगमेंट हो गया, वो 2-3% के अंदर ग्लोबली कवर हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, बट यस वो एक ऐसा मार्केट शेयर है जहां पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है। सो अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन जो है वो टोटल पाउडर कोटिंग मार्केट सेगमेंट का 43% है, जनरल मेटल जो है वो 40% है, एस सेगमेंट 6% है, एंड दिस इज ग्रोइंग। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, एस सेगमेंट यानी एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो लिक्विड कोटिंग्स पे आज तक डिपेंडेंट था, वो बहुत फास्ट पेस में पाउडर कोटिंग की तरफ स्विच हो रहा है। अप्लायंसेज 5%, फर्नीचर इंडस्ट्री, फर्नीचर मेटल इंडस्ट्री इज 3%, ऑटो व्हील इज 3%। दिस इज ग्लोबल सिनेरियो। अभी हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। ये इंडिया का इंडस्ट्रियल कोटिंग मार्केट है, इसके अंदर सॉल्वेंट बेस और पाउडर कोटिंग सारे तरीके की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडस्ट्रियल कोटिंग में वो है। सो देखिए आप ऑटो ओईएम, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ऑटो रिफिनिश, पाउडर कोटिंग, जनरल इंडस्ट्रियल, फंक्शनल कोटिंग एंड अदर्स। इस पूरे सेगमेंट में हम केवल 11% हैं। एज अ पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री हमारा जो कंट्रीब्यूशन है या जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 11% का है। अगर आप इस फर्दर 11% को बाइफर्केट करते हैं इंडिया मार्केट के अकॉर्डिंग कि हम पाउडर कोटिंग में जो मैंने पहले आपको 6 सेगमेंट दिखाए थे वो कहाँ पे हैं, कितने % शेयर में हम हैं एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, तो हम अगर आप देखें तो आर्किटेक्चरल कोटिंग्स में 15% पे हैं, एस मार्केट में 23% पे हैं, जनरल इंडस्ट्रियल 28% है, वाइट गुड्स 23 है, ऑटो या ईवी जो मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% है, जनरल इंडस्ट्रियल का जो सेगमेंट है वो 28 है, एंड अदर्स जैसा कि हम कहते हैं जो नया इनोवेशन, नया डेवलपमेंट, नए आइडियाज आते रहते हैं, पाइपलाइन में जो चलता रहता है प्रोजेक्ट, वो 3% के आसपास इस मार्केट को कवर करता है। अभी सभी लोग बात करते हैं इनोवेशन की, कि इनोवेशन, आइडियाज जनरेशन, आइडिया इंप्लीमेंटेशन, आइडिया कन्वर्जन,
सो ये आइडियाज कैसे आते हैं, किस तरीके से हम इसको कवर करते हैं, ये ऑलनेक्स की स्ट्रेटजी है या ऑलनेक्स का वर्किंग मेथोडोलॉजी है कि हम किस तरीके से इनोवेशन को सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करते हुए, सारे इनिशिएटिव्स लेते हुए हम किस तरीके से एक सस्टेनेबल वैल्यू निकालें उस प्रोजेक्ट का और उसको मार्केट में दें। सो सबसे पहले हम जो बात होती है इनपुट की, हमें इनपुट कहाँ से मिलता है? हम एमएनसीज के संग डिस्कशन में होते हैं, हम ग्लोबल मार्केट को देखते रहते हैं, ग्लोबल मार्केट का शिफ्ट टुवर्ड्स इंडियन मार्केट देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ग्लोबल मार्केट से हम इंडियन मार्केट में इंपोर्ट कर सकते हैं या यहाँ पर हम उसको फर्दर प्रमोट कर सकते हैं और जिसके लिए इंडियन मार्केट तैयार है। एमएसएमई सेगमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो एमएसएमई सेगमेंट्स से हम इनपुट्स जो लेते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप किस तरीके का मार्केट देख रहे हैं, आपके पास में क्या नए चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस जो हैं वो बाइफरकेट हम करें, रेजन नया डेवलप करके दें, फॉर्मुलेशन नई डेवलप करके दें, या आपके यहाँ पर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किसी तरीके के चेंज करने से आप वो सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। देन एसएमई सेगमेंट है, एसएमई सेगमेंट को हम इनकरेज करते हैं उनके संग डिस्कशन में और उनसे इनपुट लेते हैं, हाउ दे आर सर्वाइविंग देम इन द मार्केट, व्हाट टाइप ऑफ further support they require to develop themselves. So from all these three segments, we collect the inputs for the innovation and then Allnex starts its working. So we finalize the project. Yes, these are the following things that we have to work on, and then we finalize an internal criteria for the product development based on industry trend. So whatever the demands you are sending to us, we convert them scientifically into some numbers. Like you are sending that we require a very high impact resistance. Then we have to identify that what does that means, that if you are into hybrid systems and you are getting 80 kg impact, and then what type of further higher impact you want. What kind of technology can we provide? What kind of support we can provide you to get that impact? And then we ask you, yes, whether it's 120 is enough, you want 150, you want 180, what type of further you want, means where we should fix the number for the development. So these type of things we do. Then the QUV, salt spray, all the things, numbers are coming there. So we list them down in the characteristics and then we start working. Then the product development starts. Sometimes it's not the product development, it's just the formulation development. We have the product, we just have to fine tune the formulation to match your requirement. Then we do internal testing, external testing, and then we qualify that formulation or the product that yes, it is meeting that requirement. Then further, we are mapping out the standard set. So we can provide you, yes, these are the qualities or these are the values you will achieve by using this formulation, or if you are changing the formulation like that, these properties will change accordingly. So we are giving a standard set of characteristics with the standard formulation, and then we go for the market trials, approvals. Most of the time it approves. Sometimes it approves but doesn't commercialize due to less demand in the market, or maybe at that time there is no demand. Demand was there, but we are late as a manufacturer of resin, or as a formulator, or you are as a powder coating manufacturer. You could not hold your customer for that longer period of time. So this is happening, yeah, but most of the time we always assess that what is the context of the end application. So where this type of product we can promote, or you can utilize, or you can promote as a powder manufacturer to your application, to your customer. This is how we take a project or take a idea from you and convert it into a product or a formulation. I think there is some technical glitch in. Can you move to the next slide manually? Yeah.
So this is industrial coating market trends. जब हम इंडस्ट्रियल कोटिंग की बात करते हैं तो उसमें लिक्विड और पाउडर दोनों ही आ जाता है। अभी इसमें होता क्या है कि लिक्विड कोटिंग बहुत पुराना मार्केट है एज कंपेयर टू पाउडर। सो हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं फ्रॉम यू या आपके पास आपके यूजर से जो आती है वो जनरली क्या होता है, वो लिक्विड की स्पेसिफिकेशन को कॉपी करके आपको भेज देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसके अकॉर्डिंगली पाउडर को डेवलप कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल देता हूं, एंटी ग्रेविटी कोटिंग की अगर हम बात करें जो इनहांस परफॉर्मेंस के अंदर भी है, एंटी ग्रेविटी कोटिंग का जो मार्केट स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड हमारे पास में आता है वो लिक्विड कोटिंग के स्टैंडर्ड को मैच करना चाहते हैं। और लिक्विड कोटिंग की फॉर्मुलेशन और पाउडर कोटिंग की फॉर्मुलेशन दोनों बहुत डिफरेंट होती है, प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है, एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट है, और वो उस रॉ मटेरियल्स डिफरेंट है, स्पेशल एडिटिव्स डिफरेंट है जो इस तरीके की एंटी ग्रेविटी देते हैं। और डिमांड क्या है कि हमने एक कोट किया पैनल, 48 आवर्स के बाद हम उसके ऊपर मार्कर से एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन ड्राई पेपर से या ड्राई क्लॉथ से वाइप ऑफ हो जानी चाहिए। ये पॉसिबल है और होती है, लिक्विड कोटिंग में बहुत इजीली पॉसिबल है। देयर आर सिलिकॉन रेजिन्स, देयर आर सिलिकॉन पॉलीसिलॉक्सेन्स, PDMS. Many of my friends are here from the additive industry, they know much better than me. बट पाउडर के अंदर जब हम इस तरीके का कोई एडिटिव यूज करने जाएंगे तो उसका कंटामिनेशन बहुत बड़ा होता है। सिलिकॉन्स आर द वन ऑफ द मोस्ट कल्प्रेट्स फॉर गिविंग क्रेटर्स, एंड क्रेटर्स जो हैं वो पाउडर कोटिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिवाय एक एप्लीकेशन छोड़ दिया जाए, अगर वो एंटीक फिनिश की एप्लीकेशन आप छोड़ दें जहां क्रेटर्स आप प्रिफर करते हैं, उसके अलावा बाकी सारी एप्लीकेशंस में क्रेटर्स कोई भी प्रिफर नहीं करता है। सो इस तरीके की एप्लीकेशन में देन हमें एज अ पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री अपने स्पेसिफिकेशन सेट करने होंगे। हम कस्टमर को बहुत सारी एडवांटेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको 100% कोटिंग दे रहे हैं, वो 100 माइक्रॉन DFT लगाता है तो 100 माइक्रॉन DFT मिलती है। लिक्विड के अंदर अगर वो 100 माइक्रॉन DFT लगाएगा तो उसको 40-45 माइक्रॉन से ज्यादा DFT नहीं मिलेगी, यानी 65% ऑफ हिज मनी इज वेस्ट। वो हवा में उड़ गया सॉल्वेंट सारा, 65% सॉल्वेंट हवा में उड़ गया। तो वो उस चीज को अगर कॉम्प्रोमाइज हमारे साथ नहीं कर सकते हैं तो डेवलपमेंट में हमेशा रुकावट आने लगेगी। या तो हम कस्टमर को इतना एजुकेट करें कि वो इस बात को समझे, या फिर हम अपने लेवल पे इतने अपने आप को कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन, इन सारी चीजों में इस तरीके से एक बॉडी नॉर्म्स को क्रिएट करें कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी मार्केट में सस्टेन हो। सो ये मार्केट ट्रेंड्स हैं, आर्किटेक्चरल, एस, जनरल मेटल, लो बेक, फास्ट क्योर, स्पेशल इफेक्ट। अगर ये सारी चीजों को हम देखें जो मार्केट ट्रेंड्स हमने नोट डाउन किए तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगराइजेशन है इनहांस परफॉर्मेंस, यानी हमें परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट चाहिए। सस्टेनेबिलिटी या रेगुलेशन, जो सस्टेनेबिलिटी या रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाए, फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, पेनिट्रेशन वर्सेस लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और कॉस्ट रिडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री के लिए। सो इन सारी चीजों को जब भी हम देखते हैं तो आर्किटेक्चरल, एस और जनरल मेटल, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिमांड आती है जो वो आती है इनहांस परफॉर्मेंस की। यानी ये इंडस्ट्री हर समय हमसे डिमांड करती है कि कुछ नया बना के दो, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके के पाउडर के अंदर डाल के दीजिए जिससे कि ये और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। सो कोरोजन रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपर ड्यूरेबल पाउडर्स, पेंट, इंप्रूव पेंट सेल्फ लाइफ, मतलब जो पाउडर है उसकी सेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाए, लो ग्लॉस, less than 20 degree gloss, without matting hardness, then weather durability, low bake systems, higher mechanical impact, more than 200 kg mechanical impacts are now required in certain applications. Then ऐसे देखें तो सस्टेनेबिलिटी या रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसा फर्नीचर सेगमेंट है जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसका डिमांड क्या आता है, लो बेक, फास्ट क्योर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो सारी इंडस्ट्री मांगेगी आपसे। देन आप बायो बेस्ड रॉ मटेरियल, टिन फ्री, रिड्यूस टिन, TGIC सिस्टम जो हार्मफुल है उससे आप HA प्रिमिड सिस्टम की तरफ मूव करें। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंडस्ट्री काफ़ी सालों से चली आ रही है और हमारे दिमाग में एक मिथ है कि जब हम प्रिमिड रेजिन्स को यूज करते हैं तो उसमें पिन होल्स बनते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट, इन लास्ट 10 years प्रिमिड रेजिन्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट।
बहुत इनोवेशन हो चुका है, बहुत टेक्नोलॉजिकल ड्राइव हो चुकी है उसके ऊपर, और अब प्रिमिड रेजिन्स, प्रिमिड हार्डनर के साथ में जब आप यूज करते हैं तो उसमें पिन होल्स नहीं आते हैं। सो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो पहले हमारे दिमाग में था कि प्रिमिड हार्डनर या प्रिमिड पाउडर हम यूज नहीं करेंगे या नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें एप्लीकेशन के टाइम पे पिन होल्स आएंगे, अभी ऐसा नहीं रह गया। आप प्रिमिड रेजिन सप्लायर के साथ में या रेजिन सप्लायर के साथ में बात करिए, वो आपको इस तरीके का प्रिमिड रेजिन देंगे जिसमें पिन होल्स नहीं आते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो चुकी है। पेनिट्रेशन वर्सेस लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले पैनल डिस्कशन में भी चल रहा था कि एमडीएफ के ऊपर पाउडर पेंट होना चाहिए, प्लास्टिक्स के ऊपर होना चाहिए। यस, प्लास्टिक्स पे आप देखेंगे एक एक्सट्रिक्ट बना हुआ है क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर एक फिनिश डेवलप हो चुकी है, प्लास्टिक के ऊपर सैंड फिनिश डेवलप हो चुकी है, नायलॉन या PA6 के लिए डेवलप हो चुकी है, सैंड टाइप ऑफ फिनिश इज डेवलप्ड ऑलरेडी। देन फाइबर सीमेंट, यस दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एप्लीकेशन, वहां के लिए भी पाउडर कोटिंग डेवलप हो चुका है, मीन्स फॉर्मुलेशन सपोर्ट और प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, नाउ यू हैव टू टेक फॉरवर्ड। Now where we are working in this, we want to develop such a system that work on solid woods, क्योंकि MDF के बाद solid wood जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है वुड कोटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे लिक्विड का पेनिट्रेशन सबसे बड़ा है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सॉलिड वुड के लिए भी ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां पे पाउडर अप्लाई किया जा सके। देन कॉइल, ऑफ कोर्स देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड, बट of course in last 5 years we have not achieved the success as we want, so there is a question mark whether we can do, we cannot do. This is for the future, ये हमारी इनोवेशन पाइपलाइन में पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का भी हो, कैन में हम कर सकते हैं। देन कॉस्ट रिडक्शन की अगर आप बात करें तो सिंगल कोट, मल्टीपल कोट, हाई फिलर लोडिंग, रिड्यूस प्री ट्रीटमेंट, रिप्लेस इपॉक्सी विद पॉलिएस्टर, सो ऑल दीज टाइप ऑफ technologies are available with Allnex. Hello? सॉरी अगर थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, पर ऐसा लगता नहीं है आप लोगों को देख करके कि आवाज़ साफ पहुंच नहीं रही होगी। Okay, then till the slide is working. Oh, it started. Yeah. Yeah, so this is the demands in last 1 year from the Indian subcontinent powder coating market manufacturers. We want excellent corrosion resistance. We want salt spray more than 1000 hours with the creep size of 0.5 mm. So the both side is 0.25. Then excellent edge coverage. We developed a product that is called single edge coverage technology. It's a one coat system and it has the properties of epoxy coating as well as PP pure polyester system. It gives very good corrosion resistance, and if you consider the salt spray, it goes up to more than 8,500 hours. Then low temperature cure for ACE and architectural market because of the thickness of the metal sheet. Then reduced pre-treatment or no pre-treatment for general metal and industrial application that they do. Sometimes it happens कि pre-treatment अच्छा नहीं हुआ तो पाउडर पील ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक रेजिन सिस्टम डेवलप हुआ है कि नो प्री ट्रीटमेंट एंड रिड्यूस प्री ट्रीटमेंट, यानी फॉल्टी प्री ट्रीटमेंट के केस में भी
वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अनुराग जी स्माइल कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा बिजनेस को इम्पैक्ट करे। देन ग्लॉस एंड सरफेस फिनिश स्टेबिलिटी फॉर मैट पाउडर्स ड्यूरिंग स्टोरेज। देखिए हम बहुत अच्छा मैट पाउडर बनाते हैं इंडिया में, बट ड्यूरिंग स्टोरेज उसकी जो मैट या जो उसका ग्लॉस लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है और धीरे धीरे फिनिश खराब होने लगती है। सो दैट इज वन शॉट मैट टेक्नोलॉजी। देन न्यू मार्केट पेनिट्रेशन में अल्ट्रा लो बेक टेक्नोलॉजी इज देयर which you can use for MDF on wood as well as on plastics. Then we have a project running and we have a prototype for PPTGIC system which will give you stable properties and the shelf life during storage. So this is one shot mat technology. We call it mat without matting hardener. So there is no use of matting hardener in the formulation. You can achieve any gloss level. The market gloss level segments are dull matte, dead matte, less than 10, less than 5, matte gloss 10 to 20, 25, semi matte 25 to 45, semi glossy 45 to 70, glossy 70 to 90, high gloss this is 90. So these are the gloss levels that is working in the market, and yes, with one shot matte system we can achieve the gloss level up to 2. That is a very stable gloss 2 for if you apply the panel and keep that panel for a longer time, the gloss will remain 2. The changes will over 6 months will be like that. The gloss from 2 can shift to 3 or 4, but it will not go above 5. So this is one of the systems, and we are discussing something regarding the leatherite finish, leatherite touch. This one shot matte technology had that feel. If you can modify the formulation little bit, this is the base, and now you can modify your formulation to achieve more soft touch on your panel or in your powders. So this is the base, one shot matte, because with the matting waxes and hardeners, when you are using too much of waxes to achieve this type of system, then with the scratches and other things, the gloss level will go up. So with the one shot matte, this is a base, and then you can modify your formulation to achieve that soft feel. The soft feel here is, if you have ever feel the soft touch, जो सॉफ्ट टच आपको OK412 और TS100 लिक्विड कोटिंग में जो आता है, TS100 एड ऑन करके, मैटिंग एजेंट TS100 एड ऑन करके, या OK412 एड ऑन करके, या जो नॉर्मल मैट फिनिशेस मार्केट में हैं, जो मेलामाइन मैट्स, PU मैट्स मार्केट में चलते हैं इन लिक्विड कोटिंग्स, उस तरीके का इनबिल्ट मैट या इनबिल्ट सॉफ्ट टच इसके अंदर है। आप उसको फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। फॉर दैट वी कैन डिस्कस ऑन द फॉर्मुलेशन पार्ट। देयर आर सर्टेन पेयर्स ऑफ द रेजिन to achieve that type of gloss level. For example, if you want a gloss level between 12 to 18 units, there is a resin that is Krill code 2635-2 and 2499-6. You use these two products in the formulation, and you will achieve a gloss between 12 to 18. For less than 10 units, yes, again 2635-2 and the Krill code 2691-2. These are the resin pair system. All these finishes are available in super durables, in PU finishes as well. So one shot matte technology is available all across, standard durable, super durable, and in PU. Now in all three systems you don't require, or this industry we can skip using matting hardeners or waxes to achieve matte finish, stable matte finish. Then this is single edge coverage technology. This is for ACE, earth moving or snowplow applications. So in earth moving applications or ACE, or even you can use in for general metals, wherever you want a edge coverage, where you want to protect the substrate from corrosion from the edges. So this is a single layer powder coating system. It gives you a very good coverage on the sharp edges, and as explained earlier by Vivek ji, that when a powder film is cured, it shrinks from the edges. So the thickness on the edge is very low as compared to the middle part of the panel or the substrate.
So if we compare one coat system, two coat system, dry on dry, these all are there. But yes, there are some pros, some cons. But if we discuss on the single edge coverage technology, this is a patented technology. It can be discussed under NDA, non-disclosure agreement, and you can see the comparison. One coat is standard durable TGIC system, direct to metal. Two coat with primer and top coat. These both are powder coating, and this is new one coat that is a direct to metal. And if you see the edge, the corrosion on the edge, there is a significant difference after 350 hours, close to 350 hours. That one coat is standard durable, that is a powder coating system. There is a heavy corrosion on the edges. Then with two coats, primer and top coat, of course with higher DFT, there is some reduction, but still the corrosion is there. And with one coat, this new system, SEC technology, this is the bare minimum corrosion that is there. So if we discuss on the QUV part, yes, if you see QUV 313B, that the gloss retention, 50% gloss retention is up to 1,500 hours. So it's a very good. You can consider it as a standard durable grade, super durable grade, as per your choice. And if you see the xenon test, it passes more than 80% gloss retention up to 5,000 hours. So it's a pretty good system. And if we compare the SST, it is 6 times better than the single coat system, and it's 2 times better than the two coat system. So if we see the comparison, the lower one is with the single coat. In the middle, that is around 3,250 hours. It is with the two coat system, means powder primer, epoxy primer powder, and then the PP top coat. And if you see the single coat SEC technology, it goes, we have tested now with till 8,500 hours. So SST is 8,000, we can guarantee with the formulation that yes, the SST will be 8,500 hours. So 8,500 घंटे की SST PP system में हम ये बहुत सारा एंटी करोसिव पिगमेंट डाल करके अपने पाउडर, नॉर्मल पाउडर के अंदर अचीव करते हैं 10,000 घंटे का, और इपॉक्सी सिस्टम लेते हैं जिसका कि आउटडोर्स नहीं होता है, आउटडोर स्टेबिलिटी नहीं होती है. बट इस सिस्टम की ना सिर्फ आउटडोर स्टेबिलिटी है, बट साथ ही साथ में आप इसका SST भी देख सकते हैं. कॉस्ट इट इज हियर, हाइब्रिड एज अ कॉस्ट इज हियर. सो कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर था. सो इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने डेवलप किया, और ये मेटल शीट्स के लिए एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन है. ये ऑर्गेनोमेटेलिक टिन यानी टिन फ्री सिस्टम है. द ग्रेड नंबर इज 2486-7. QUV is very good, 50% gloss retention is there up to 250 hours. So हाइब्रिड से ज्यादा है QUV और स्टैंडर्ड PP से कम है. With this formulation, high gloss means you can achieve up to 98 gloss level. And for the matte, yes, we have made this formulation for the gloss level around 35, and we can go beyond that also, as per us. Then this is the ultra low bake system. जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, थिन मेटल शीट्स होंगी, ऐसा सिस्टम है जो कि हीट को बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता है. जैसा अभी एक एप्लीकेशन की बात आई कि हेलमेट इंडस्ट्री के ऊपर, हेलमेट सारा ABS से बनता है. ABS 60 से 80 डिग्री के बीच में उस बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका जो शेप है वो सस्टेन नहीं करेगा. तो हमें टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जो 80 to 100 के बीच में सस्टेन करती हो, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन क्योरिंग का हो वो बहुत कम हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर वो क्योर हो जाए. सो अल्ट्रा लो बेक टेक्नोलॉजी उस तरफ मूव कर रही है. अभी तक जो अवेलेबिलिटी है वो 95 डिग्री की है, बट यस विद द IR ओवन. सो 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप 7 to 8 मिनट्स के अंदर इसको क्योर कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंज करना होगा उसे कन्वेक्शनल ओवन हटा करके IR ओवन लगाना होगा. फर्दर हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एज पर द डिमांड. ये प्लास्टिक में यूज कर सकते हैं, वुड में यूज कर सकते हैं. So now we are talking about something about sustainability.
ये एमएनसी एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबिलिटी को क्या समझा जाता है मार्केट के अंदर, कि व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी। देखिए सस्टेनेबिलिटी के अंदर 3-4 चीजें हैं। एक तो आप एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस कर दे तो सस्टेनेबल सोल्यूशन आप मार्केट को प्रोवाइड करते हैं। आप दूसरा रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स को अपने फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं तो आप सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज की बेस रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं तो भी आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करते हैं। एंड या तो फिर आप रेगुलेटरी को कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी HVAC जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज नहीं करते हैं, या RoHS कंप्लाइंस अपना पाउडर बनाते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको यूज नहीं करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन में, तो आप रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को करते हैं। सस्टेनेबिलिटी में ये चीजें आती हैं, यानी इन्वायरमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, एंड इन पाउडर कोटिंग सस्टेनेबिलिटी इज राइट नाउ दैट we can and we are using recycling system in the powder formulations or in the resin formulations or additive formulation. Wherever we can use recycle, we are focused more on the recyclability. Then low temperature cure, we are working on the energy saving. So circular economy and energy saving, powder coating sustainability में इन 2 पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है और डेवलपमेंट्स, सक्सेसफुल डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। Now these are few products from Allnex as per the market demands that is coming from the market. So reduce pre-treatment, industrial PPTGIC system, the grade is Krillcoat E04417. For low temperature cure, architectural system, 160 degree 12-minute curing or 10-minute curing, this is Krillcoat 2609-6. If you want a very good corrosion protection for ACE application in pyramid resins, we have 2608-6. Then excellent corrosion resistance in super durable architectural application, that is Krillcoat 4627-2. Low temperature cure TGIC, that is 16012-2499-6, and you can achieve 150 as well with this resin system. And we also have one more resin in that category, that is 2451-6, that can with that resin you can go up to 135 degree for 10 minutes. A low temperature cure hybrid 50-50, 150, 135, 140, all are possible. The grade name is 1545-6. LTC TGIC with excellent flow, that is 2451-6. Qualicoat 1.5, that means if you want to go for a automotive segment and you want a better product than standard durables, यानी आपको QUV, gloss, flow सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, then there is a resin that is called Krillcoat E04809. Especially ये प्रोडक्ट जो है वो जो टैंक्स होते हैं मोटरसाइकिल के, 2 व्हीलर्स के जो टैंक्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। सो इसके अंदर बहुत अच्छा गैसोलिन रेजिस्टेंस है, पेट्रोल रेजिस्टेंस है। देन इम्प्रूव मॉइस्चर रेजिस्टेंस पिरामिड सिस्टम के अंदर आर्किटेक्चरल कोटिंग में 2606-6। सो ये सारा जो मार्केट डिमांड है, किस तरीके के मार्केट से किस तरीके का रिक्वायरमेंट आता है, स्पेशली अभी अब जैसे हम बात करें मॉइस्चर रेजिस्टेंस की। सो मॉइस्चर रेजिस्टेंस अगर हम कोई भी आर्किटेक्चरल सिस्टम देते हैं, यानी हम एल्युमिनियम फैकाड एप्लीकेशन की बात करते हैं, सो बिल्डिंग क्या है, वो 15 माले की बिल्डिंग है, जो टेम्परेचर ग्राउंड फ्लोर पे है उससे 10 डिग्री टेम्परेचर कम होता है 15वें माले के ऊपर, तो वहां पे ड्यू का डिपोजिशन हो जाता है। जब वो ड्यू वेपराइज होती है, जब वो हवा में उड़ती है तो वो अपना स्पॉट छोड़ देती है, या मॉइस्चर आप वाइप ऑफ करते हैं तो ओवरनाइट के बाद वहां पर एक मॉइस्चर का स्पॉट रह जाता है। तो कई जगहों पे इस तरीके की फिनिशेस फर्नीचर मार्केट के अंदर, जब आपका फर्नीचर आउटडोर में बाहर खुले में पड़ा रहता है और आप उसको वाइप ऑफ करते हैं तो वहां पे मार्क्स पड़ जाते हैं, या फर्नीचर जो घर के अंदर है आप उसके ऊपर पानी का ग्लास रखते हैं और वहां पे एक सर्कुलर मार्क बन जाता है वाटर का। सो ये रेजिन सिस्टम वैसा है कि जो इस तरीके की चीजों को रोकता है, और मॉइस्चर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा मॉइस्चर रेजिस्टेंस है इसके अंदर। देन TMA फ्री सिस्टम है, 60-40 हाइब्रिड, दैट इज अ न्यू डेवलपमेंट। Then 70-30 hybrid, that these all sustainable solutions, and 95-5 TGIC. So sustainability के अंदर भी अगर आपको कभी कोई कार्बन क्रेडिट या इस तरीके का पॉइंट आता है, रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट में जाते हैं, सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट में जाते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पाउडर के बॉक्स के ऊपर एक ग्रीन टैग लगे इको वाइज का, तो ये प्रोडक्ट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं।
It's stuck again. Yeah. Because it is really wide. No, I have to just move. It is outside that one. Yeah, now you have to. कुछ नहीं हो रहा. Speaker is not working. Now you have to. अभी तक आपने देखा कि जो क्रिलकोट ब्रांड है वो सिर्फ या ऑलनेक्स जो है वो रेजिन्स के लिए आप जानते हैं कि ऑलनेक्स रेजिन की कंपनी है. ऐसा नहीं है. पाउडर कोटिंग में हमारे पास बहुत अच्छे एडिटिव्स भी हैं. सो हमारे पास कैटालिस्ट हैं, फ्लो प्रोमोटर्स हैं, मास्टर बैचेस हैं, बहुत अच्छा फ्लो मॉडिफायर है, ट्राइबो चार्जिंग एडिटिव्स हैं, देन हार्डनेस हैं, मैटिंग एजेंट्स हैं, आप फ्लेक्सिबलाइजर्स यानी इम्पैक्ट मॉडिफायर्स हैं. सो एडिटिव का भी पोर्टफोलियो उतना ही रिच है पाउडर के लिए जितना कि रेजिन का रिच है. सो मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आगे आप फर्दर बात कर सकते हैं. दिस इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोडक्ट मोडा फ्लो पाउडर 6000. ये एक फ्लो एंड लेवलिंग एडिटिव है. इस फ्लो एंड लेवलिंग एडिटिव नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं अपनी फॉर्मुलेशंस के अंदर. But if you replace your existing flow and leveling with Moda Flow Powder 6000, what you will achieve? Improved flow and leveling. The pinholes will be reduced. Fish eyes will be reduced in the system. If there is a small craters, that will go away. It will reduce your orange peel, and it will give you good cross compatibility between the formulations also. सो अप टू सर्टेन एक्सटेंट दैट कि एक पाउडर चल रहा है और उसके बाद फिर दूसरा पाउडर अप्लाई किया जाता है और वहां पर क्या होता है कि दोनों पाउडर के बीच में कितना भी क्लीन कर लें वो सिस्टम को एप्लीकेशन में, वो 0.01%, 0.05% या 0.1% पाउडर फिर भी रह जाता है इन्वायरमेंट के अंदर. और वो जब फर्दर दूसरे पाउडर के ऊपर डिपॉजिट होता है तो वहां पर क्रेटर्स को डेवलप करता है. समटाइम बैच टू बैच के अंदर भी होता है कि हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स के अंदर सर्टेन चेंजेस हैं और उसकी वजह से भी कॉम्पेटेबिलिटी का इशू आता है. सो मोडा फ्लो पाउडर 6000 जो है वो ना सिर्फ फ्लो एंड लेवलिंग अच्छी देता है बल्कि आपको बहुत अच्छा क्रॉस कंटेमिनेशन से या कॉम्पेटेबिलिटी के इशू से भी बचाता है, क्रॉस कॉम्पेटेबिलिटी से भी. अब इसका लाइव एग्जांपल आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैं दो टेक्नोलॉजीज के लिए श्योर हूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं. एक है वन शॉट मैट टेक्नोलॉजी. अगर आप लेस देन 2 ग्लॉस से लेकर के 20 ग्लॉस तक का पैनल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पीछे रेनबो कलर्स का स्टॉल है, उसमें इस टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप उनके पैनल को फील कर सकते हैं. सेकेंड, अगर आप मोडा फ्लो पाउडर 6000 का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी वो एक पैनल है. आई थिंक इट्स अ ब्लैक ग्लॉसी पैनल एंड यू कैन विजुअलाइज दैट. सो दीज बोथ आर प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू कैन विजुअलाइज एंड वी कैन डिस्कस ऑन लेटर विद दिस. So with this I will close my presentation. Thank you very much. I know कि मैंने बहुत टाइम लिया और आप सभी लोग बहुत थक गए होंगे, अभी चाय का टाइम हो गया है. Thank you. If you have any question or any doubt, you can ask, please. I think there are no more questions because you explained the topic so well that there are no more doubts left. Thank you, sir. Please wait for the felicitation. I would like to call Mr. Pradeep from Varna Court to do the honors. Everyone is sleeping right now. Round of applause, please. Louder one, a bigger one, bigger than life.
much. Thank you for your time. Thank you for the precious words and knowledge. We are due with one panel discussion, which will happen after iced tea. Sorry, high tea. That's my order to go, but that's high tea. Okay, so please head towards high tea, and we'll see you in 15 minutes.